Hi, Clavians. How are you all? I hope that you and your family are doing well. Clavians, welcome back to the session number 9 of the second chapter of organic chemistry, that is nomenclature of organic compound. In this session, we are going to discuss how to do IUPAC nomenclature of organic compound that consists of nitro group, that is IUPAC nomenclature of nitro compounds. Students, if you are new to this channel, then I'll personally recommend you to just visit session number 1 to session number 8 so that you'll get an clarity about the rules that we are going to use in this session as well, that is IUPAC rules. So if you have not visited, the link of session number 1 to session number 8 is already given in the description box of this video. Do visit that videos and then and only then switch to session number 9. So let's not waste much time and start with session number 9. Eclavians, as you are aware that each and every start with a motivational quote. So today's motivational quote is, you only fail if you stop trying. As it is written, you will only fail when you stop trying. So I hope that you must have understood what I am trying to convey with this motivational quote. So let's start with the session. The session talks about nitro compound. Okay, first of all, what I'll expect you to comment is, what is the functional group of nitro? Okay, how you can identify that organic compound consists of nitro, and what are the prefix and suffix to be used in IUPAC nomenclature. Okay, by the time you comment, I am writing the first discussion that we are going to do is about nitroalkanes. Okay, nitroalkanes. So आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा नाइट्रो ग्रुप के रिलेटेड. सो इफ आई आस्क यू द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इफ आई आस्क यू अबाउट फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रो, देन आई अज्यूम दैट कि आपने यही कमेंट किया है NO2 ग्रुप, और आपने ये इमेजिन किया होगा कि NO2 इज बीन रिप्रेजेंटेड एज दिस. So this is a nitro group. If I'll ask you the prefix, अगर बात करें prefix की, so the prefix is only nitro. Nitro is a prefix. Talking about suffix, so you must have written that there is no suffix to nitro. And with this discussion, can I say that nitro is just treated as a substituent, not as a functional group in IUPAC nomenclature? Then you will say, yes, I am absolutely right. So again, like halo compounds, nitro compounds is also treated as prefix, or basically nitro is also treated as a prefix, so there is no suffix. And since there is no suffix in IUPAC nomenclature, nitro will just act as a substituent. So again I'll say nitro group is considered as a substituent in IUPAC nomenclature. Okay, and this is important, you have to remember this thing. Talking about nitroalkanes, talking about this segment, nitroalkanes. So if I'll say that nitroalkanes may be defined as when one hydrogen of alkane is represented as RH, that is alkane. Okay, when one hydrogen of alkane, I'll remove one hydrogen and I'll add one NO2 group. So when one hydrogen of alkane is replaced by nitro group, the compound that is formed is nitroalkane. Its common and IUPAC name is considered to be the same. ओके, तो अपने को कॉमन नेम एंड IUPAC नेम अलग से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो एक चीज़ याद रखना, नाइट्रोअल्केन का जो कॉमन नेम है वही उसका IUPAC नेम होगा, या वाइस वर्सा. IUPAC नेम हम जो भी डिस्कस करेंगे दैट विल बी इट्स कॉमन नेम. नाउ अगर आपको हैलो कंपाउंड का गाइस डिस्कशन याद है तो उसमें हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी, दैट हैलो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज मोनो एंड पॉली हैलो अल्केन्स. सो डज द नाइट्रोअल्केन्स. ठीक है, जैसे हैलो कंपाउंड्स क्लासीफाई करते हैं वैसे ही नाइट्रोअल्केन को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो, दैट इज मोनो
एंड पॉली, ठीक है। एंड आई होप दैट कि आपको ये भी पता है मोनो क्या होगा, जब वह एक हाइड्रोजन अल्केन का नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस होगा हम उसको बोलेंगे मोनो नाइट्रो अल्केन, एंड जब एक से ज़्यादा रिप्लेस होगा तो वो होगा पॉली नाइट्रो अल्केन, दैट इज डाई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, टेट्रा नाइट्रो, इस तरह से पॉली नाइट्रो अल्केन उसको कहा जाता है, ठीक है। सो इतने डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, डाई ट्राई टेट्रा जैसे हमने हैलो कंपाउंड्स के लिए किया था सेम रूल नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ करना है। मोनो हैलो अल्केन्स जैसे डाई हैलो, जैसे हमने हैलो कंपाउंड्स के लिए भी किया था वैसे हम मोनो नाइट्रो के लिए भी करेंगे। मोनो नाइट्रो अल्केन्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, दूसरा है सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन एंड तीसरा है टर्शरी नाइट्रो अल्केन। तो अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन वाला चीज़ याद है तो उसमें हमने ऑलरेडी ये सेगमेंट डिस्कस कर रखा है। प्राइमरी नाइट्रो अल्केन हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा कार्बन जिससे नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रो ग्रुप नॉट नाइट्रोजन, जिससे नाइट्रो ग्रुप बॉन्डेड है वो सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। द कार्बन ऑन विच नाइट्रो ग्रुप इज बॉन्डेड शुड बी बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन एटम, देन इट इज नोन एज प्राइमरी। जैसे ये वाले कार्बन पे ध्यान दो, NO2 ये वाले कार्बन पे बॉन्डेड है, एक ही कार्बन से बॉन्ड कर रहा है तो प्राइमरी। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो where nitro is bonded that carbon should be bonded to 2 other carbon atoms। टर्शरी वाला भी बहुत सिंपल है, where nitro is bonded it should be bonded to 3 other carbon atoms। तो ये बस एक सिंपल सा आइडिया देने के लिए, हमने ऑलरेडी डिग्री ऑफ कार्बन डिस्कस किया है एंड उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन हमने किया था कि डिग्रीज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था, इसको अलग से डिस्कस करने का रीज़न ये है कि इसका जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में तो ये इस डिग्री के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। ऑल्दो नाइट्रो कंपाउंड्स की केमिस्ट्री अपने को बहुत कम पढ़नी है बिकॉज ये हाईली स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। हम इसके केमिस्ट्री बहुत कम पढ़ते हैं बट ये जितनी भी पढ़ेंगे उसमें डिग्री का सबसे ज़्यादा रोल होगा, ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लो। आई होप आपने वो सेगमेंट गो थ्रू कर लिया होगा। जैसे कि आपको पता है IUPAC रूल्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रो के बारे में एक ही चीज़ पता होना चाहिए कि इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ट्रीट करते हैं, रूल्स पढ़ा है हमने। तो प्लीज़ एक काम करो, वीडियो पॉज करो, ये जितने भी स्ट्रक्चर दिए इन सब के मुझे IUPAC नेम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट यू टू मार्क इन योर बुक इज़ IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सेकेंडली डिग्री ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, थर्ड इसमें कौन से अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व है वो। मैं सब कुछ तो नहीं लिखूंगा बट येस ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि कौन से अल्काइल ग्रुप है, डिग्री क्या है एंड देन उसका IUPAC नेम। तो प्लीज़ वीडियो पॉज कर ले एंड पहले इसका नाम लिख ले। एंड मैं यही उम्मीद करके आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, so that कि you must have written, not should, you must have written the IUPAC name or whatever practice question I am going to do, you are solving it in a piece of paper or a book। तो स्टार्ट करते हैं इससे स्ट्रक्चर IUPAC नेम से। पहला तो IUPAC ने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करना है, एक ही लॉन्गेस्ट चेन होगा कार्बन का क्योंकि मिथाइल है, तो इट नेम विल बी नाइट्रो मीथेन। अगर हम इसका डिग्री बोले तो 1 डिग्री है, या तो इसको बिना डिग्री के भी हम डिस्कशन में ले सकते हैं, या तो 1 डिग्री या तो नो डिग्री इसको कहा जाता है। 1 डिग्री इज मोस्ट प्रिफर्ड। अगेन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन है। अब दोनों कार्बन में से NO2 कहीं पे भी लगे उसका पोजीशन एक ही होने वाला है, तो इसके लिए हम नंबर नहीं लिखते, विल डायरेक्टली राइट नाइट्रो इथेन। ओके, टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। NO2 के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट है भी नहीं, बट नंबरिंग इस तरह से करना है कि NO2 को लीस्ट नंबर मिले, तो दिस इज 1 2 3, ठीक है। सो द नेम कैन बी रिटन एज 1 नाइट्रो प्रोपेन। इफ आई आस्क यू अबाउट द डिग्री, तो डिग्री भी मार्क करते हुए चलते हम यहाँ पे। इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, इसका भी डिग्री क्या है 1 डिग्री। ओके, नाउ कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो है नाइट्रो ग्रुप। नंबरिंग इस तरह से करना है कि नाइट्रो को लीस्ट नंबर मिले, 1 2 1 2 दोनों ही जगह से मिल रहा है 2, लॉन्गेस्ट चेन में है 3, सो इट्स नेम विल बी 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इट्स डिग्री, नाइट्रो जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 2 अलग कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो गया 2 डिग्री। अगेन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन,
1 2 3 4, तो ये रहा लॉन्गेस्ट चेन इसका। व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम। नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले तो 1 पे ही है, 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन में है 4 कार्बन एटम, तो इट्स नेम विल बी 1 नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, अगेन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो, नंबर इट इन सच अ वे दैट नाइट्रो शुड गेट लीस्ट नंबर 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, देन ये था 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री। ओके, नाउ अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3। अगर इस तरह से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है 1 2 3। अगर ये वाला चेन सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो रूल ये कहता है वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अपने को ज़्यादा मिले। तो ये रहा, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, एक है मिथाइल, एक है नाइट्रो। अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है तो हम पहले M लिखेंगे, बट नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले 1 1 2, तो नंबरिंग ऐसे ही करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नाम क्या आएगा इसका। नाइट्रो स्टार्ट्स विथ M, मिथाइल स्टार्ट्स विथ M। ठीक है, तो N और M में M पहले आता है, तो इट इज़ 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन। Okay, coming upon to the next one, again select the longest chain 1 2 3, 2 substituent 1 1 2 3, again 2 substituent 1 2 3, again 2 substituent। तो you select any chain, you will get only 2 substituent and longest chain as 3 carbon atoms। ठीक है, दोनों का ही पोजीशन देख के लग रहा है सेम होगा, तो 1 2, so its name will be 2 methyl 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेगमेंट, लास्ट वाला सेगमेंट देखते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। अगर ये मैं लॉन्गेस्ट चेन कर रहा हूँ तो मुझे 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 2 3। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ऐसा सेलेक्ट करूँ 1 2 3, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 2 1 2 3। अगर ये वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो वापस से 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं ऐसा चेन सेलेक्ट करूं, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, और नंबर इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर, तो 1 2 3। ओके, अब इसका नेमिंग कैसा आएगा 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल। ओके, देन 1 पे है नाइट्रो एंड द लास्ट वन इज प्रोपेन। ठीक है, बात करें अगर इन सब के डिग्री की, अगेन इट इज़ 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 1 डिग्री। बट इसका डिग्री आपको इसके नाम से, अल्काइल ग्रुप के नाम से भी पता चल सकता है। वो कुछ इस तरह से है। इसमें जो ये अल्काइल ग्रुप है दैट इज़ मिथाइल। अगर मैं अल्काइल ग्रुप्स की बात करूँ तो दैट इज़ मिथाइल। ठीक है, ये वाला जो है इट इज़ इथाइल, दिस इज एन प्रोपाइल, ओके, दिस इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है, दिस इज एन ब्यूटाइल, ठीक है, एंड दिस इज सेक ब्यूटाइल, देन दिस इज आइसोब्यूटाइल, ये वाला है टर्शरी ब्यूटाइल, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज नियो ब्यूटाइल, सॉरी दिस इज नियो पेंटाइल, नॉट ब्यूटाइल। नियो ब्यूटाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये है नियो पेंटाइल।
एंड अगर आपको अल्काइल ग्रुप्स वाला सेगमेंट याद है तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था एन आइसोनियो 1 डिग्री होगा, सेक वाले 2 डिग्री होंगे एंड टर्ट वाले 3 डिग्री होंगे। तो आप चेक कर लो, एन आइसोनियो सबका 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री, आइसो का भी 1 डिग्री, एन का 1 डिग्री, एन का 1 डिग्री। एंड आइसो के लिए एक एक्सेप्शन बोला था, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल, सारे के सारे आइसो क्या होंगे 1 डिग्री, बट आइसोप्रोपाइल होगा 2 डिग्री। ये रहा आइसोप्रोपाइल, इकलौता ऐसा केस है जो 2 डिग्री होगा। सेक वाला 3 डिग्री एंड टर्ट वाला, सॉरी सेक वाला 2 डिग्री, टर्ट वाला 3 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सही मिले तो थम्स अप ज़रूर करना। ठीक है, एंड यस, एक बार वीडियो को पॉज कर ले एंड गो थ्रू कर ले। आई होप आप लोगों ने वो सेगमेंट गो थ्रू कर लिया होगा, सारे मिस्टेक्स चेक कर लिए होंगे। ओके, नाउ अगला जो सेगमेंट है उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आपको सिर्फ एक काम करना है, इन सब के IUPAC नेम लिखने हैं। एडिंग टू दैट, ये जितने भी मैंने ब्रैकेट्स मार्क करके रखे हैं रेड कलर में, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच अल्काइल ग्रुप इट इज़। इस अल्काइल ग्रुप का मुझे नाम चाहिए, कॉमन नेम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप। सो प्लीज़ वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना, उसके बाद ही वीडियो रिज्यूम करना। एंड एज आई सेड कि मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी बैठ के ये वीडियोस देख रहे हैं बुक और पेन के साथ सॉल्व ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इसके अल्काइल नेम से। ठीक है, इसका नाम है विनाइल, इसका नाम है विनाइल। इसका नाम आई होप आप लोगों ने लिखा होगा अलाइल। ठीक है, इसका नाम है क्रोटाइल एंड इसका नाम है प्रोपरगाइल। नाउ इफ यू आर फॉलोइंग माई वीडियो, अगर आप मेरा वीडियो हर एक सेशंस गो थ्रू कर रहे हो तो आप देख रहे होगे कि सर ये नाम बहुत फ्रीक्वेंट है। इवन इसके पहले आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक, नियो, ये सब बहुत फ्रीक्वेंट है। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार क्यों, बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज एक हैबिट होती है कि अगर हम एक चीज़ बार बार अगर रिपीट करके करें तो वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है और ये सारे कॉमन नेम्स आगे जाके अपने को बहुत काम आएंगे। एंड जो स्टूडेंट ऑलरेडी 11th पास करके 12th में जा चुके हो, अगर वो ये वीडियोस देख रहे हैं अपने डाउट्स के क्लैरिटी के लिए, तो उनको ये सारे अल्काइल ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस पता होगा कि कितने क्रूशियल होते हैं ये अल्काइल ग्रुप जब हम एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, देन हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे कोई रिएक्शंस वाले जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे ये सब, क्योंकि कोई कंपाउंड रिएक्ट करेगा, कोई कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा। एंड किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, किसी की रिएक्टिविटी कम होगी तो वो कम रिएक्ट करेगा। इसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट IUPAC। आई होप आपने सब मार्क कर दिया होगा IUPAC एंड नाउ आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट कि अब से IUPAC में गलती होना कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमने IUPAC किया है। लॉन्गेस्ट चेन में यही सिलेक्ट करना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन आइटम बट देयर इज इन प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, NO2 का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो इसका जो नाम होगा इट विल बी नाइट्रोईथीन, इट विल बी नाइट्रोईथीन। अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यही है लॉन्गेस्ट चेन, बट नंबरिंग इस तरह से करना है कि आप डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज, डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दोगे, पोजीशन चेंज नहीं, डबल बॉन्ड को आप लीस्ट नंबर दोगे। अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2, यहाँ से करूँ तो 1 2 3, फर्स्ट पे ही आ रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 3 नाइट्रोप्रोपीन। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यही होने वाला है लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इस तरह से करो कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले 1 2 1 2, दोनों ही जगह से लीस्ट नंबर क्या मिल रहा है 2, तो डबल बॉन्ड का इंपॉर्टेंस खत्म। अब नंबरिंग इस तरह से करो कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसको लीस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4। तो इसका नाम हम क्या लिखने वाले हैं, इसका नाम विल बी 1 पे है नाइट्रो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेयरिंग चेन इज 4, so that is ब्यूट। सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, सो इट इज इन, सो इट्स नेम विल बी 1 नाइट्रो ब्यूट टू इन। टॉकिंग अबाउट 13th वन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये वाला। ठीक है, नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, तो ये हो गया 1 2 3, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा 3 नाइट्रो प्रोप आइन, बिकॉज देयर इज इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सब राइट आंसर थे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 एंड 13 के। अब इसका सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, लेट्स सी 1
2 3 4 5 6 7। सबसे पहले वाला स्ट्राइट चेन सेलेक्ट कर लो, तो इसमें आ रहे हैं 7। लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। 1 2 3 4 5 नहीं ले सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आ रहे टोटल? 9। अब 9 से ज़्यादा कहीं और मिल रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं मिल रहा है। 9 वाला सबसे ज़्यादा है, तो 9 वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। नाइट्रो N, मिथाइल M, इथाइल E, मिथाइल M, ब्रोमो B। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल के लिए भी हमने लिख दिया। अब नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर 1 2 3। पहला सब्स्टिट्यूएंट को मिला 3, 1 2, सबसे मिला 2, तो शॉर्टेस्ट नंबर इज 2, तो यहीं से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली पहला कौन आएगा? ब्रोमो, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद बी, तो पहले हम लिखेंगे बी। सो 7 पे क्या हो जाएगा? ब्रोमो, तो 7 ब्रोमो। बी के बाद आता है ई, सो कम्स 5 इथाइल। देन आता है एम। एम कहाँ पे? 4 और 6, तो इट बिकम्स 4, 6 डाईमिथाइल। एक लास्ट सब्स्टिट्यूएंट बचा नाइट्रो, सो इट इज 2 नाइट्रो। ओके, लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 9 कार्बन एटम्स, तो नॉन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एन। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, 7 ब्रोमो, 5 इथाइल, 4, 6 डाईमिथाइल, 4, 6 डाईमिथाइल, 2 नाइट्रो नॉन। ठीक है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन क्लियरली दिख रहा है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, देन नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लीस्ट नंबर मिले 1 2 1 2 3 4 5 2 3 4 5, सब जगह से सेम नंबर मिल रहा है। देन रूल ये कहता है कि आप नंबरिंग उस डायरेक्शन से करो जिस डायरेक्शन में अल्फ़ाबेटिकली कमिंग फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर, या उसको प्रायोरिटी देनी है। तो ब्रोमो नाइट्रो मिथाइल बी जीत गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ये है मिथाइल, ये है ब्रोमो, ये है नाइट्रो। ठीक है, तो पहले तो आएगा ब्रोमो, सो इट बिकम्स 2 ब्रोमो। ओके, 2 ब्रोमो। एम और एन में एम पहले आता है, देन 5 मिथाइल, देन 8 नाइट्रो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज 9, सो नॉन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज इन। अब ये वाले स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि डबल बॉन्ड है, एंड डबल बॉन्ड शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन हम इस तरह से ही सिलेक्ट कर पाएंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का। देन नंबरिंग इस तरह से करना है कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन इट हैज़ कम 9। देन आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। मिथाइल, नाइट्रो, नाइट्रो। तो नाम कैसे आएगा इसका? इट इज़ 8 मिथाइल, 8 पे है मिथाइल, देन 2 एंड 8 पे है नाइट्रो ग्रुप, सो 2, 8 डाइनाइट्रो। ठीक है, डाइनाइट्रो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 9, नॉन। ठीक है, डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 पे है, सो इट इज़ नॉन 3 इन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी राइट मिला होगा, एंड इवन क्वेश्चन नंबर 15 भी राइट मिला होगा। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ट्राई करना है कि सभी आ जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं ये वाला चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सारे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नंबर इट इन सच अ वे दैट कि अनसैचुरेटेड कार्बन शुड गेट लीस्ट नंबर। अनसैचुरेशन में ये वाला कार्बन पे फर्स्ट है, बट यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो नंबरिंग इस तरह से ही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला भी 9 है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स ये क्या है? इथाइल, दिस इज मिथाइल, मिथाइल एंड दिस इज नाइट्रो। ठीक है, देन नेमिंग करते हैं इसका। ये दोनों में सबसे आउट ऑफ ऑल दिस 4 सब्स्टिट्यूएंट ई कम्स फर्स्ट, सो इट इज 4
इथाइल, ठीक है, इट इज़ 4 इथाइल। देन 4 इथाइल के बाद आता है मिथाइल। मिथाइल कहाँ कहाँ पे, 3 पे है एंड 5 पे है। देन इट इज़ 3,5 डाईमिथाइल, ओके, 3,5 डाईमिथाइल। देन रिमेन्स नाइट्रो, 8 नाइट्रो, 8 नाइट्रो। टोटल number of carbon is 9. There is more than one double bond, so A should be added, becomes nona. Positions of double bond is 4 and 8, so it is 4,8 di N, and triple bond is at first position, so it is ine. So again I'll repeat, 4 ethyl, 3,5 dimethyl, 8 nitro, non, 4,8 di-ene, 1 ine. Okay, now coming upon to this question number 18. ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स है तो ट्राई करना है सभी को सिलेक्ट कर ले। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि इसी तरह से होने वाला है। देन नंबरिंग इस तरह से करना है कि अनसैचुरेटेड कार्बन शुड गेट लीस्ट नंबर, जितने भी है उतने, 1 1 2 3। यहाँ से ये काफ़ी दूर लग रहा है तो मेरा नंबरिंग अब किस तरफ से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये रहा 10। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लोरो, इथाइल, नाइट्रो। नेमिंग करते, पहला आएगा C, सो दैट इज 8 क्लोरो, 8 पे है क्लोरीन ग्रुप। देन 6 पे है इथाइल ग्रुप, ओके, 6 पे है इथाइल ग्रुप। देन टॉकिंग अबाउट थर्ड पे है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 10 कार्बन एटम, सो इट इज डेक। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो A, सो इट बिकम्स डेका। पोजीशन क्या है, 1 and 3, सो डेका 1,3 डाई-इन, ओके। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है 9, सो इट इज 9 आइन, ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे राइट आंसर मिले होंगे विदाउट एनी इश्यूज़। ये वाला सेगमेंट भी प्लीज़ पॉज करके एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, ठीक। एंड आई होप दैट कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ आपको नाइट्रो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करने के लिए। आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं एंड विद दिस थिंग, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। थैंक यू सो वेरी मच for watching this session. God bless you all. Take care. We'll meet soon.